शुक्र है अब नोटिस कर लिया था. All right. Contraceptive contraception and abortion हमारा चैप्टर है. मैं पेज नंबर 70 के ऊपर हूँ. ठीक है. Let's start. अच्छा, none of the existing methods of contraception are 100% effective at preventing pregnancy, but the most effective methods are called the long-acting reversible methods of contraception, जिनको हम LARC भी कहते हैं. So it's written over here. ठीक है. These are called the fit and forget methods, और इसके अंदर हमारे पास copper intrauterine device आती है and levonorgestrel intrauterine system. ठीक है. And progestin only implant. So these are, I want you guys to remember this. Here, there are different mechanisms of actions that are used to prevent pregnancy. The first one is prevent ovulation. ठीक है. So these are the methods of action, mechanism of action of combined hormonal methods, pill, patch, and vaginal ring, progestin only injectables, and all the progestin related contraceptive devices. ठीक है, जो यहाँ पे list हुए हैं. Then we have prevent the sperm reaching the oocyte. This is by using female and male sterilization, जिसको हम vasectomy भी कहते हैं. Then we can prevent the embryo from implanting into the uterus, and this is the mechanism of action of the uh, copper IUD and Mirena. ठीक है. Allow sperm into the vagina but poison them, and this is the mechanism of action of spermicides. लेकिन हम spermicides only नहीं use करते, we give it with something else as well. Then you can allow the sperm into the vagina but block the further passage, and this is the mechanism of action of the diaphragm and the cap, and is also one of the mechanisms of action of progestins. So we're going to be looking at this as well, कि किस तरह insert किए जाते हैं. Then we can prevent the sperm entering the vagina, and we can use male and female condoms for this, and you can avoid sexual intercourse during the fertile time of the cycle, and this actually falls under the fertility awareness based methods, which we'll also be looking at. Achha, efficacy and effectiveness is really important. ठीक है. The efficacy of a method depends on its mechanism of action, लेकिन जो effectiveness है ना, वो compliance पे भी डिपेंड करती है और कंटिन्यूएशन ऑफ अ मेथड पे भी डिपेंड करती है. तो ये एक टेबल है, टेबल 6.1 ऑन पेज नंबर 71. इसके अंदर इन्होंने लिखे हुए हैं typical use percentage and perfect use percentage. Now ये जो percentages हैं, ये है कि what is the percentage chance of conceiving after 1 year of use. ठीक है. तो 1 year के बाद वाला ये है आपके पास percentage. Now you can see that no method के अंदर there's 85% chance of the couple conceiving after 1 year. Okay? And most couples are able to conceive after 1 year. This is the percentage for that. Acha, what is the difference between perfect use and typical use? Perfect use is if that method is being used with all the rules and regulations, it's being used properly and continuously. So uske saath kya percentage hai of conceiving, and typical use is how it's used in real time. Matlab, it could be that the female is taking pills and she forgot, she skipped a few pills, या फिर a condom is being used and it wasn't available at the time, so they just skipped using it. तो ये उसके साथ percentage है. अच्छा, now you can see over here कि कुछ चीज़ों की जो typical use से percentage काफ़ी high है और perfect use के साथ it's pretty all right. ठीक है. And let's look at these devices over here जो हमारे पास वो थी long acting reversible methods of contraception के अंदर. You can see that the typical use percentage is quite close, almost equal to the perfect use percentage, and these are you can see why these are known as the most effective methods. Then progestin only implant is also there. ठीक है. तो Implanon जिसको कहते हैं. Then female sterilization vasectomy, obviously they seem very very effective as well. लेकिन इसकी application का ये मसला है कि most couples they wish to conceive in the future, just not at the current time. तो फिर उसके लिए these methods are very difficult to reverse. ठीक है. If not at all, तो हम लोग ये आगे देखेंगे how are these done and which methods are reversible and which are not. ठीक है. उसके अलावा they also look at the safety. ठीक है. Most women who use contraception are fit and healthy, लेकिन if they have some sort of medical condition or if it's contraindicated in them for any reason, तो ये आगे हमारे पास next page के ऊपर है, table 6.2a है and table 6.2b है. तो एक medical eligibility criteria बनाया है, WHO की तरफ से आया है. तो इसके अंदर 4 categories हैं हमारे पास. ठीक है.
कॉन्ट्रासेप्टिव देने के, ठीक है। तो पहली कैटेगरी है कि कंडीशन फॉर विच देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो यू कैन एब्सोल्युटली यूज इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड वाली है द एडवांटेजेस ऑफ द मेथड आउटवे द थियोरेटिकल और प्रूवन रिस्क्स ऑफ दैट मेथड, ठीक है। फर्स्ट थी कोई मसला नहीं दे सकते हैं, सेकंड थी generally advantages outweigh the disadvantages. Number 3 is like a relative contraindication, जैसे कि the risks outweigh the advantages, but you know it's dependent on clinical judgment, or there's a lot more factors that are playing part in it. And then number 4 are absolute contraindications, ठीक है, a condition that represents an unacceptable health risk if the contraceptive method is used. So just to remember this, you can say number 1 allowed 100%, 2 you can write advantages more than disadvantages, 3 is like relative contraindication, and 4 is like absolute contraindication, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास categories हैं। Then this table is also important, 6.2b. इसके अंदर जो combined hormonal contraception है उसकी कैटेगरी 4 कंडीशंस क्या हैं। कैटेगरी 4 मतलब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर, यू नो दे टेल यू द एज ऑफ द फीमेल, दे टेल यू हाउ मेनी किड्स शी हैज, तो उस हिसाब से आपने उसको कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड चूज करके बताना होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस होती हैं, तो दिस विल हेल्प यू सेलेक्ट दोज ऑप्शंस एज वेल। इफ हर एज इज मोर देन 35 एंड शी इज स्मोकिंग, अच्छा अब सिर्फ एज मोर देन 35 है तो यू कैन गिव हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। लेकिन अगर एज मोर देन 35 है एंड शी स्मोकिंग, तो जो रिस्क ऑफ जो क्या कहते हैं डीवीटी और हाइपरकोएगुलेशन वो सब है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उनमें हम नहीं देते। देन इफ हर ब्लड प्रेशर इज मोर देन 160/100, ठीक है, सो शी हैज सम सॉर्ट ऑफ malignant hypertension। फिर हाइपरटेंशन विद वैस्कुलर डिजीज, डीवीटी करंटली या पास्ट में कभी हुआ है, MI करंटली या पास्ट में कभी हुआ है, CVA एक्सीडेंट मतलब वो हुआ है करंट में पास्ट में, फिर एनी मतलब जो रिस्क फैक्टर्स फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, देयर आर मल्टीपल ऑफ देम, देन नोन थ्रोम्बोजेनिक म्यूटेशंस एंड करंट ब्रेस्ट कैंसर। तो इस पूरे टेबल में से इवन इफ यू जस्ट रिमेंबर एज मोर देन 35 एंड स्मोकिंग, BP more than 160/100, DVT, MI, CVA and current breast cancer, तो it's more than sufficient for you to understand, ठीक है। और ये जो हमारे सारे मसले मिसाइल हैं मोस्टली ये एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से या एस्ट्रोजन एक्सेस में देने की वजह से, जो हमारे कंबाइंड हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव में एस्ट्रोजन होती है, ठीक है। तो दीज आर इट्स इश्यूज ओवर हियर। अच्छा, and then there are some drugs which decrease the efficacy of hormonal contraception, जो पिल, पैच और रिंग या इम्प्लांट वगैरह हम देते हैं तो उसकी ये करती है। और वो इस तरह है कि जो लिवर में जो एंजाइम थी हमारे पास वो P450 जो साइटोक्रोम सिस्टम था उसकी जो है एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये उसकी एफिकेसी रिड्यूस कर देंगे बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर सम एंटी कन्वर्जेंट्स, इसमें से आप 1-2 नाम याद कर लें या फिर इन जनरल आप एंटी कन्वर्जेंट याद कर लें। एंटीबायोटिक में रिमेंबर रिफैम्पिसिन एंड एंटी फंगल में ग्रिजियोफॉल्विन, एंड देन यू कैन जस्ट रिमेंबर कोई भी जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहा है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर दीज नेम्स। just in general anticonvulsants तो नहीं ले रहा, antibiotics में सिर्फ rifampicin, rifabutin है, antifungal में griziofulvin है और antiretrovirals, all of them almost over here, ठीक है, especially the protease inhibitors over here and the non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors। अच्छा, अब side effects हैं कुछ इनके hormonal methods के, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज मे कॉज अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग, तो इस केस में आपने फीमेल को रीअश्योर करना है कि दिस इज नॉर्मल एंड इट शुड गो अवे। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो शी शुड कम बैक एंड शुड टेल हर द डेंजर साइंस। most people think that weight gain hota hai, but there is no proper evidence to support this except in one case, the progestin only injectable in adolescents, ठीक है। उसके अलावा कोई रिसर्च बेस्ड इसके ऊपर कंफर्मेशन है कि वेट गेन होता है सिवाय एक के जो है प्रोजेस्टिन ओनली इंजेक्टेबल, और वो भी एडोलेसेंट्स में, ठीक है। देन हेडेक्स हो सकते हैं, स्पेशली जो कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके अंदर अगर माइग्रेन विद ऑरा हो
तो उसके अंदर फिर हम उनको वो देना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हेडेक्स इज वेरी कॉमन, और फिर मूड स्विंग्स हो सकते हैं एंड लॉस ऑफ लिबिडो। इसकी भी देयर इज नो प्रॉपर एविडेंस टू बेस दिस ऑन, बट perceived side effects से भी बहुत मसला होता है. So if a woman thinks that she's taking some method of contraception and it is causing it, तो उसका psychological effect इतना strong होगा that it will actually cause that problem. ठीक है. If okay, so bleeding is normal, but if bleeding problems persist for more than 3 months, so they should probably have to do excess investigations to rule out certain causes such as polyps, chlamydial infection, या कोई intrauterine cavity lesion such as fibroids or polyps. So any other cause of excessive bleeding. ठीक है. फिर again इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर headaches develop होते हैं तो then you should change the method of contraception, और ये combined oral contraceptives के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है. And then obviously you have to look at some non-contraceptive health benefits, और ये अगले टेबल में मैं टेबल 6.4 में मैं आपको भी बताती हूँ. And then there's also the acceptability of a method, ठीक है, how much that female considers it acceptable at her age and with her future family planning, ठीक है. अच्छा, these are the non-contraceptive health benefits, और ये भी काफ़ी जैसे MCQ या आपको UQ के अंदर ऐसे assess करने में आ जाता है, ठीक है. How would you recommend a certain method, and उसके multiple कुछ के benefits होते हैं, जैसे कि ये मायरीना के कुछ benefits हैं कि ये heavy menstrual bleeding जो हमने already देखे हैं. वैसे तो ये तीनों जो हैं, मायरीना भी, combined hormonal contraceptive भी, और जो progestin only injectable भी है, तो इसके साथ भी आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ये रोक रहा है. इनफैक्ट दिस वाज द फर्स्ट लाइक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. जिन फीमेल्स ने कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए, उनको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो रही है, तो यू वुड गिव देम मायरीना फर्स्ट. और अगर उनको मायरीना नहीं लेना, तो फिर हम उनको कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव भी दे सकते हैं इफ शी डिजायर्स कॉन्ट्रासेप्शन. इफ शी इज नॉट डिजायरिंग कॉन्ट्रासेप्शन, तो फिर हम उनको ट्रानेक्सामिक एसिड और जो पॉन्स्टोन है, जो मेफेनेमिक एसिड है, वो पहले देते हैं, ठीक है. एंटी फाइब्रिनोलिटिक एंड दोस, तो एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन वो वाले हैं, ठीक है. तो वो इफ शी स्टिल विशेस टू कंसीव, लेकिन ये वो वाले मेथड्स हैं उनको देने हैं इफ शी डज नॉट विश टू कंसीव. अच्छा, अब हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोकता है. एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस के लिए बेनिफिशियल है. फिर डिस्मेनोरिया में भी ये काफ़ी हद तक पेन जो है वो कम कर देता है. And then endometrial protection है, and simple hyperplasia के against PA protect करता है. Then combined hormonal contraceptive के क्या दूसरे benefits हैं apart from contraception is heavy menstrual bleeding. फिर irregular menses को ये normal ले आता है. Then hirsutism and acne के अंदर ये बहुत ज़्यादा helpful है. Premenstrual syndrome में ये help करता है and reduces the risk of ovarian and endometrial cancer. Then the DMPA जो है progestin only injectable है, तो ये again this helps with heavy menstrual bleeding, endometriosis and dysmenorrhea. So I want you guys to put like a star on this table and just remember these really well. At least हर के दो तीन जो हैं extra benefits याद कर लें, ठीक है, apart from contraception obviously. अच्छा, फिर ये एक अच्छा टेबल है, determinants of contraceptive method acceptability. तो it could depend on personal characteristics, for example age, fertility infections आगे, does she want to conceive in the future, does she not want to, और कितने time के बाद she wants to conceive. Then her perception of how effective it is, her perception of the safety, and then fear of side effects. The fear of side effects is pretty big. If you tell a female she's going to gain weight, it's actually a pretty big side effect. तो you need to reassure her कि इसके लिए कोई scientific base नहीं है, कोई evidence नहीं है. फिर familiarity with the contraceptive method, for example उसकी family ने अगर किसी ने use किया है और उसका अच्छा experience है, तो उसकी perception भी अच्छी होगी. अगर family में किसी ने use किया, उसका बुरा experience है, तो obviously उसकी जो उसके साथ वो है association है, वो अच्छी नहीं होगी. तो experience of others again, ease of use and access. And the need to see a health professional, वो कितना regularly एक health professional के पास जाती है. If she's a busy working woman, तो obviously she can't just do weekly visits or whatever it is. And then intrusiveness, कितना उसको interfering लग रहा है ये process, and non-contraceptive benefits भी काफी ज़्यादा वो उसको help करते हैं. तो if you tell a woman के okay, suppose you're taking if you're giving her Mirena,
ठीक है, आप उनसे कहते हैं कि ये एक तो आपको कॉन्ट्रसेप्शन नहीं होगी, उसके अलावा शी हैज़ पेनफुल पीरियड्स, तो आप उसको कहते हैं इससे आपकी पेन भी बहुत कम हो जाएगी एंड आपकी जो है आपको ये हाइपरप्लेजिया के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करेगा, तो देन द मेथड बिकम्स मोर अट्रैक्टिव टू हर, ठीक है। तो ये सब वो काउंसलिंग में आ जाएगा जब हम प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे। तो ये टेबल 6.5 है, व्हाट अ वुमन नीड्स टू नो बिफोर स्टार्टिंग अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, how to use it, and what are the typical failure rates, what are the common side effects that she should expect, uske health benefits kya hai apart from contraception, then fertility kitni der baad return hoti hai on stopping, theek hai, and when does she require review. So these are all things that all the things that she needs to know. And usually ये जो है एक मतलब लीफलेट होती है, मतलब काफ़ी सारी लीफलेट्स होती हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंसेप्शन की, तो आप उनको पकड़ा देते हैं और वो खुद ही पढ़ लेती हैं। हमारी सेटिंग में क्या होता है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि फ़ीमेल को हमें खुद बहुत पुश करना पड़ता है, बहुत गाइड करना पड़ता है, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि हम अच्छा खासा जो है टाइम लगाएं और उसको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करें और बताएं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन में जो बुक में मेंशन है, इट इज़ द कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रसेप्शन। तो इसमें पिल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, और ये ओरल पिल्स के तौर पे भी अवेलेबल हैं। ट्रांसडर्मल पैच भी होता है और वेजाइनल रिंग भी है। तो पिल्स की पिक्चर ये पेज 74 फिगर 6.1 में है, और जो हमारे पास पैच है और रिंग है उसकी पिक्चर हमारे पास है फिगर 6.2 जो पेज 75 पे है उसमें, ठीक है। तो जस्ट लुक एट दीज पिक्चर्स so you get a little bit familiar. अच्छा, मोस्ट ऑफ दीज पिल्स दे आर लो डोज, ठीक है। इसके अंदर होता है एथिनाइल एस्ट्राडायोल, एंड न्यूअर पिल्स में एस्ट्राडॉल वैलोरेट एंड एस्ट्राडॉल हेमीहाइड्रेट भी होता है। तो आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर कि जो नेचुरली अकरिंग एस्ट्राडायोल है ना, वो अगर हम इंजेस्ट करें तो उसका इफेक्ट कोई खास हमारे पे होगा नहीं, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू ऐड दिस एथिनाइल पार्ट, ठीक है। तो इट नीड्स टू बी एथिनाइल एस्ट्राडायोल और एस्ट्राडॉल वैलोरेट, ठीक है। वी कांट जस्ट गिव एस्ट्राडॉल, इट्स नॉट गोना डू एनीथिंग। देन मोस्ट ट्रेडिशनल प्रिपरेशन कैसे होती हैं, 21 पिल्स होती हैं फॉलोड बाय 7 डे, या पिल फ्री होता है या 7 प्लेसेबो होता है, और प्लेसेबो में या वो आयरन टैबलेट्स दे देते हैं, या जैसे कोई मल्टीविटामिन की टैबलेट होती है तो वो पूरा पैक उसी तरह आता है विद द नंबर ऑफ डेज ऑन इट एंड एवरीथिंग दैट आर मेंशन्ड, ठीक है। तो दो कैसे होता है, 21 डेज होते हैं और 7 डे पिल फ्री होता है, और जो 7 डे पिल फ्री पीरियड होता है उसके अंदर उनको वो विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अब यूजुअली मोनोफेजिक होती है, मतलब दो चीज़ होती है, मोनोफेजिक कॉम्पोजिशन होती है, मतलब सेम डोज ऑफ हॉर्मोन्स रहते हैं थ्रू आउट दोज 21 डेज ऑफ द पिल्स। फिर होते हैं बायफेजिक, और उसके अंदर जो हैं चेंज होते रहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डोज, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इसका कोई ख़ास जो है जो डिफरेंस अभी तक पता नहीं चला, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। फिर अगर किसी को ड्यूरिंग द पिल फ्री पीरियड जो हैं वो हेडेक्स आ रहे हैं, तो या फिर कोई बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड, लाइक विड्रॉल ब्लीड के दौरान डिस्मेनोरिया हो रहा है, so then we can ask them to do hormone free interval by tricycling. Now what is tricycling? It's taking 3 packets without any break. तो इसमें क्या होता है, 12 weeks के लिए वो continuously ये लेती रहती हैं, ठीक है, these packets, और फिर एक वीक जो 13th वीक होता है उस पे वो उनका withdrawal bleed वाला वीक होता है, and she can do this tricycling like on and so forth, ठीक है। 12 weeks के लिए continuous, and then the 13th week is the break, ठीक है। तो टेलर्ड पिल किस चीज़ को कहते हैं, टेलर्ड पिल कैन ऑल्सो बी रिकमेंडेड। तो इसमें क्या है, द वुमेन दे कंटिन्यू टू टेक द पिल until they want to start a bleeding episode, ठीक है। तो this is up to the woman now कि वो she will just continue to take the pills until उनकी मर्जी है कि जब उन्होंने bleeding episode start खुद करवाना हो, ठीक है। अगेन ये इंटरवल रिकमेंडेशन जो गायनाकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन उस पर भी बेस करता है और वुमेन की अपनी मर्जी पे भी बेस करता है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया अबाउट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जेन प्रोजेस्टेजेंस, और जो रिकमेंडेड और बेस्ट हैं फर्स्ट चॉइस हैं जो, वो हैं सेकेंड जेन। तो सिर्फ आप उनके नाम याद रखें, ठीक है, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल एंड नोरएथिस्टेरोन, और यूजुअली लीवोनॉर्जेस्ट्रेल इज यूजुअली इन अ लॉट ऑफ दीज फॉर्मुलेशन, ठीक है। लीवोनॉर्जेस्ट्रेल एंड नोरएथिस्टेरोन, these are
मतलब recommended. इसमें ये है कि जो थर्ड और फोर्थ जन था उसमें एंड्रोजेनिक एक्टिविटी तो कम थी, लेकिन उसके साथ जो है वो रिस्क हो गया वीनस थ्रोम्बोसिस का ज़्यादा, तो दैट्स वाई सेकंड जेन इज स्टिल रिकमेंडेड एज फर्स्ट चॉइस. फिर हमारे पास आ जाती है पैच और या एंड रिंग. पैच को यूज़ करने का ये तरीका है कि बस ये ट्रांसडर्मल पैच होता है, ठीक है. इसमें एथिनाइल एस्ट्राडायोल एंड नोर एल्जेस्ट्रोमिन, आई डोंट नो इफ यू सपोज्ड टू रिमेंबर दीज, बट जस्ट नो के इसमें दोनों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेजन होते हैं, और ये हम स्किन पे लगा देते हैं, लोअर एब्डोमेन, बटक या आर्म फॉर 7 days, ठीक है. एंड इट कैन बी पुट एनीवेयर इन द बॉडी एक्सेप्ट फॉर द ब्रेस्ट, ठीक है. तो ये हम रोज लगाते हैं, सॉरी नॉट रोज, एक्सक्यूज मी, लाइक 7 days के लिए लगाते हैं ना, तो 21 days के लिए आपने लगाना है. तो लाइक बेसिकली यू हैव टू पुट इट ऑन 3 times इन द बिगिनिंग ऑफ ईच वीक, और इसमें फिर एक हफ्ते फिर हम नहीं लगाते, वो हमारे पास 7 day हार्मोन फ्री इंटरवल होता है, उसके अंदर अगेन विड्रॉल ब्लीड होता है. Again you can use the batch for tricycling at tailored use, ठीक है. और इसके साथ इश्यूज क्या हैं एग्जैक्टली कि दे एक्सपीरियंस इधर स्किन सेंसिटिविटी टू द पैच, या फिर पैच एडीरेंस हो जाती है, मतलब वो बहुत मुश्किल से, या वो उतरता नहीं है, बहुत मुश्किल से उतरता है, एंड इट कॉजेज सिग्निफिकेंट पेन ओवर देयर एज वेल, ठीक है. उसके अलावा वी हैव अ वजाइनल रिंग. इसकी भी अगेन इट हैज बोथ एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेजन, एंड ये लोएस्ट डोज है कंबाइंड हार्मोनल मेथड का. तो जस्ट अंडरलाइन दैट सेंटेंस, it is the lowest, it contains the lowest dose of the combined hormonal method, the ring, ठीक है. तो रिंग जो है वो सेल्फ इंसर्टेड है, और it's worn in the vagina for 21 days, and then there's a 7 day hormone free period for vagina for withdrawal bleeding. और ये जो है बीच में रिमूव भी किया जा सकता है within that 21 day period. She can remove it for 3 hours and it can be cleaned and replaced, but make sure कि ये 3 hours से ज़्यादा जो है वो remove ना रहे, और उस दौरान जो है she doesn't take part in any sexual intercourse, ठीक है. फिर हमारे पास है missed pills, patches and rings. अच्छा, अब कभी कभार होता है कि मिस कर देता बंदा, तो what are you supposed to do in that? तो इसकी फ्लो चार्ट बहुत अच्छी बनी हुई है. अगर 2 और मोर पिल्स जो हैं वो मिस हो जाती हैं, तो दिस प्लेसेस अ वुमन एट रिस्क ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है. अगर 2 और मोर, अच्छा मैं इसको इस यहीं से बता देती हूँ. इफ वन पिल हैज बीन मिस्ड, ठीक है, मोर देन 24 आवर्स एंड अप टू 48 आवर्स लेट, तो फिर आप बस कंटिन्यू करें कॉन्ट्रासेप्टिव कवर, एज इन आप मिस्ड पिल तब ले लें जैसे आपको याद आए, और फिर आप बस नॉर्मल जैसे चल रहे थे उस तरह आप कंटिन्यू करें अपना स्केड्यूल. और उसके बाद ये है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन वैसे यूज़ ज़रूरत तो नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन ऐसा अगर हुआ हो कि आपने इसी पैकेट में से, मतलब पिछले 21 डेज में अगर आपने पिल मिस की है, या फिर प्रीवियस पैकेट के लास्ट वीक में, बेसिकली अगर आपने इस पैकेट या प्रीवियस पैकेट के लास्ट वीक से पिल कभी भी मिस की है, तो यू आर गोइंग टू नीड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. उसमें मैं हम पढ़ेंगे व्हाट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं आपको बता देती हूँ. यू कैन यूज मायरीना along if you want to switch, but most people, excuse me, not Mirena, emergency contraception में वो आता है, not Mirena, copper device, हाँ, copper IUD device. तो you can switch instantly, but most people obviously वो नहीं switch करना चाहते, तो you can use what do you say, the morning after pill, ठीक है. उसके अंदर उसकी मैं formulations आपको बता दूंगी, ठीक है. उसके अलावा if you feel कि I didn't take I think that's it, emergency contraception में. And then if 2 or more pills have been missed, which like more than 48 hours जो हैं वो गुजर चुके हैं, तो recent pill जो है आप उसको you'll take it as soon as possible, और remaining pills को आप continue करोगे, ठीक है. And during this time condoms should be used or sexual intercourse should be avoided until 7 consecutive active pills have been taken, ठीक है. तो you should either use condoms or avoid sexual intercourse for 7 days, ठीक है. और उस दौरान आपने जो है पिल्स लेते रहना है, ठीक है. और ये इन्होंने बहुत स्पेसिफिक करके लिखा हुआ है फॉर द फीमेल्स हु डू काउंट देयर डेज एग्जैक्टली. तो अगर जो पिल्स हैं दे आर मिस्ड इन द फर्स्ट वीक,
ठीक है. तो emergency contraception should be considered during if unprotected sexual intercourse has taken place in the pill-free interval. ठीक है, this is during 1 and 7 days. फिर अगर 8 to 14 days के दरमियान है, there is no indication of emergency contraception. अगर जो पिछले 7 दिनों की pills हैं वो ली जा रही थी, और अगर 15 to 21 days में pills miss हो जाती हैं, तो आप जो है pill free period को omit कर देंगे और आप जो है finish कर देंगे current pack. ठीक है, और फिर आप न्यू पैक शुरू कर देंगे. मतलब वो जो प्लेसिबो टैबलेट्स थी हमारे पास, जो भी मल्टीविटामिन, आयरन, जो भी प्लेसिबो टैबलेट्स थी, आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे. ठीक है, तो दिस इज द स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग इट. और ऑब्वियसली इफ अ वुमन has missed her pills and she's worried, and usually what will happen is वो gynecologist के पास आती तो नहीं है, लेकिन जैसे वो कॉल करके पूछ लेती हैं, तो then you have to know how to guide them. ठीक है. अच्छा, what else is there? Acha, if you are using a patch, so if a patch is not applied for 48 hours, then you need to take those extra precautions as well, like use a condom for your sexual intercourse, या फिर other methods. Again, if a ring is not kept there for more than 3 hours, ये मैंने पहले भी बताया कि जब ring जो है अगर आप उसको निकाल रहे हैं to clean and replace, तो it should not be taken out for more than 3 hours. ठीक है, और उस दौरान जो है you should not have unprotected sexual intercourse. अच्छा, then we have the route of administration contraceptive की duration. This table is important. ठीक है, especially from an MCQ point of view, तो आप जो है इसके ऊपर स्टार डाल लें. अच्छा, जो ओरल जो हैं क्या कहते हैं, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रसेप्शन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसकी ड्यूरेशन है हमारे पास 24 आवर्स. ठीक है, फिर ट्रांसडर्मल की 7 डेज तक सही रहता है. फिर वजाइनल रिंग जो है 21 डेज तक रहती है. फिर प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल जो है 14 वीक्स. तो मैं इसको यूजुअली याद रखती हूँ 3 मंथ से, क्योंकि ना ये मेरे लिए ईजी हो जाता है. जैसे 1 दिन, 1 हफ्ता, 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल, फिर 3, 5 या 10, 3, 5 या 10. ठीक है, तो ये 1 दिन, 1 हफ्ता, 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल, 3, 5, 10, 3, 5, 10. ठीक है, तो आप इस टेबल को इस तरह याद रख सकते हैं, या आप इसको अपने हिसाब से जिस तरह भी आपको लग रहा है. 24 आवर्स रहती है ओरल उसकी, फिर ट्रांसडर्मल की 7 डेज, वजाइनल रिंग की 21 डेज. प्रोजेस्टिन ओनली इंजेक्टेबल जो है, जो हमारे पास डिपो फॉर्मुलेशन होती है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन की, वो रहती है 12 to 14 वीक्स. तो दैट्स अबाउट 3 मंथ्स. फिर प्रोजेस्टिन ओनली इम्प्लांट आता है हमारे पास, जिसको हम इम्प्लानॉन कहते हैं, और दूसरे भी इसके नेम हैं. 3 years तक रहता है. फिर कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है 3, 5 या 10. अगेन देन वी हैव लीवर नॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, तो 3, 5 और मोर इसमें लिखा हुआ है, तो इस तरह आप याद कर लें इसको. ठीक है, फिर हमारे पास है अब सेफ्टी क्या प्रोवाइड करती है ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव. एक तो ये रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ कैंसर्स. कौन कौन से? कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन. लेकिन अब क्या इंक्रीज किस कैंसर का रिस्क करती है? ब्रेस्ट कैंसर का एंड सर्विकल कैंसर का. ठीक है, किन कैंसर्स का रिड्यूस करती है? कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन. ठीक है, फिर इंक्रीज करती है ब्रेस्ट कैंसर का. लेकिन इफ यू स्टॉप इट देन इट द रिस्क डिक्रीजेस अगेन, और इस तरह. फिर सर्विकल कैंसर का भी इंक्रीज करती है रिस्क. बट अगर आप जो हैं हर साल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, अगर आप अपना पैप स्मीयर करा रहे हैं रेगुलरली, तो देन यू शुड बी गुड टू गो. ठीक है, तो वो अर्ली डिटेक्शन हो जाती है. उसके अलावा आप HPV की वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं. ठीक है, बिफोर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी कमेंसेस. और यू कैन रिड्यूस योर रिस्क बाय यूजिंग कॉन्डम्स और नॉट स्मोकिंग. ठीक है, तो इफ यू आर स्मोकिंग देन यू शुड स्टॉप स्मोकिंग एज वेल इफ यू वांट टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ ऑल दीज कैंसर्स. फिर उसके अलावा एक मसला भी है कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, एंड वी ऑलरेडी नो इट्स बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, और ये वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड आर्टेरियल डिजीज कराता है. ठीक है, and I'm not going to elaborate on this, but you just have to know that this is a risk. ठीक है, और again उसके साथ अगर दूसरे वो फैक्टर्स हैं, जैसे अगर वो स्मोक कर रही है, वो ओबीस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है,
फिर we have the next method, progestin only contraceptive method. तो इसमें we have oral injectable implants and intrauterine system. ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इधर लिखा हुआ है. बेसिकली दे इनहिबिट, अच्छा इट डिपेंड्स ऑन द डोज. ठीक है, इट इज डोज डिपेंडेंट. तो जो लोअर डोज फॉर्मुलेशंस हैं they don't really inhibit ovulation. सिर्फ जो हायर डोज हैं या है इंजेक्टेबल इम्प्लांट या डीजोजेस्ट्रल, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन. ठीक है, और जो प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ऑल ऑफ देम दे थिकन द सर्विकल म्यूकस. तो इससे जो है स्पर्म पेनिट्रेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है. And again, yeah, I just want to point out कि Mirena जो है it has little effect on endometrial activity, लेकिन इसका जो mechanism of action है it causes endometrial atrophy. ठीक है, तो that prevents implantation. Again, इससे वो हो रहता है endometrial atrophy हो रही है, ये जो है cervical mucus को thicken कर रही है. ठीक है, तो these are how it works. Then we have the progestin only pill and it needs to be taken continuously. तो हमने जो combined pills था उसका देखा था कि वो 21 days के लिए हम ले थे और फिर बीच में 7 दिन pill free period था. इसका ये है कि इसको आपने continuously लेना है. जो medium dose pills हैं उसके अंदर desogestrel होता है and they inhibit ovulation. ठीक है, 99% of the times. और जो lower dose है obviously उनकी efficacy कम है, तो they inhibit ovulation less than 1/2 cycle. खैर आप बस ये डोज का याद रखें कि डोज ज़्यादा होगी तो दे विल इनहिबिट ओव्यूलेशन, डोज कम होगी तो नॉट सो मच. ठीक है, और लेकिन ये कि वो रिलाई करेंगे ऑन द सर्विकल म्यूकस इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. साइड इफेक्ट्स में क्या है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है और परसिस्टेंट ओवेरियन फॉलिकल्स रह सकते हैं जिसकी वजह से सिस्ट बन जाती हैं एंड एक्नी होती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स. अच्छा, अगर ये पिल मिस होती है तो the woman should continue taking her pill and use extra precautions for the next 48 hours. ठीक है, अगर इस टाइम पे there is any unprotected sexual intercourse तो कोई emergency contraception जो है इस टाइम पे आप वो यूज़ कर सकती हैं. ठीक है, उसके अलावा दिस वाज द पिल. ठीक है, तो इस पिल की समरी क्या है, मीडियम डोज पिल से इनहिबिट होती है ओव्यूलेशन. जो लोअर डोज पिल्स हैं दे रिलाई ऑन द सर्विकल म्यूकस इफेक्ट. साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इरेगुलर ब्लीडिंग, persistent ovarian follicles cysts हो जाती हैं, एक्नी वगैरह हो जाती है. ठीक है, अगर पिल मिस हो गई है तो कंटिन्यू टेकिंग द नॉर्मल स्केड्यूल एंड next 48 hours के लिए make sure that you don't have unprotected sexual intercourse, and if you do then use an emergency contraception. Next we have the implant. इन्होंने Nexplanon लिखा हुआ है, हमारी सेटिंग में we use Implanon. ठीक है, बुक में ये मेंशन नहीं था. तो Implanon इज बेसिकली, ये पिक्चर इसकी बनी हुई है, ग्रीन है, मैंने वाइट वाले देखे हुए हैं. आई डोंट नो इफ द कलर मेक्स अ डिफरेंस. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फॉर्मुलेशन होती है हमारे पास डीजोजेस्ट्रेल की. ठीक है, तो ये एक छोटी सी मैचस्टिक टाइप चीज़ होती है, ये हम इंसर्ट करते हैं सबडर्मली. ठीक है, 8 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकॉन्डाइल. तो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ लाइक अ रैंडम arm. So suppose this is the patient's right arm. तो preferably हम right arm में नहीं डालते because it's the active arm and you use it for a lot of things. तो left arm के अंदर ये हमारा medial epicondyle है और इधर तकरीबन जो है subdermally हम इसको insert कर देंगे. ठीक है, अच्छा, remember subdermally is 8 centimeter above the medial epicondyle and usually in the non-dominant arm. और insertion एक specialist ने करनी है. ठीक है, number 1. number 2, local anesthesia में करनी है. अगर ये ज़्यादा deep चली जाए तो इसको वापस निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इन्होंने लिखा हुआ है कि the Nexplanon, it contains a small quantity of barium which permits it to be visualized by X-ray. ठीक है, और वैसे ये लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड प्रोब्स पे भी मिल जाता है. वैसे ये यूजुअली जो है ना यू कैन फील इट अंडर द स्किन, सो इट्स यूजुअली नॉट एन इशू, इट डजंट हैव दैट इशू. ओह, हाउ लॉन्ग हैव आई बीन म्यूट? प्लीज टेल मी टू द रिकॉर्डिंग. गाइस, मेरी आवाज कब आना बंद हुई थी?
I don't even know at this point. दो लोग हैं. They can tell me if they could imagine if they couldn't hear me all along. आ रही थी. आ रही थी. अच्छा मुझे लगा मैंने ना. Okay. अच्छा चलो सेट है. अच्छा ठीक है. राइट. एक दफा इंसर्ट हो जाइए तो कोई रूटीन फॉलो अप की आपको जरूरत नहीं पड़ती वैसे. ऑलराइट ऑसम. आपको कोई रूटीन फॉलो अप की जरूरत नहीं पड़ती. एंड इट रिलीजेस स्टेडी डोज ऑफ प्रोजेस्टेजन. और रिमूवल के बाद आफ्टर 1 वीक जो है लेवल्स जो हैं वो अनडिटेक्टेबल हो जाते हैं. एंड fertility is restored almost immediately after removal. ठीक है. तो this is the advantage of this, and I have seen a lot of females in our setting use this method of contraception. ठीक है. Then we have progestin only injectable. ये हमारे पास है depot injection of medroxyprogesterone acetate, and you have to remember this, medroxyprogesterone acetate. और ये हम IM देते हैं. You can give it in the buttock, upper arm, lower abdomen. इसको हम डेपो प्रोवेरा बोलते हैं. इसको हम जो सयाना है इसको हम सबक्यूटेनियसली भी इंजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो देयर इज अ वेरी नाइस पिक्चर ऑफ द सयाना ऑन फिगर 6.5 ऑन पेज 78. ठीक है. इसमें क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन अगेन इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन होती है. एंड इसका इंजेक्शन इंटरवल में पहले भी बताया ये 12 to 14 वीक्स होता है. दिस इज दैट 3 month वन जो हमने बात की थी, 3 months वाली. ठीक है. इस पे अगेन क्या कहते हैं, वही मसले मिसाइल हैं कि इट मे कॉज लाइक क्या कहते हैं इरेगुलर ब्लीडिंग इन द बिगिनिंग, और वो सब वो जो हमने सारे साइड इफेक्ट्स किए थे. इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है और एक्नी हो सकती है और वो सब. ठीक है. तो ये कॉज कर सकता है. अच्छा अब इसका ये है कि ये वुमेन को हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हम उसको सिखा सकते हैं. ठीक है. और ये इतना इजी है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, लिटरली इसको कोई भी दे सकता है. हेल्थ प्रोफेशनल दे सकते हैं, ट्रेन फार्मासिस्ट दे सकते हैं, इवन हम दूसरी फीमेल्स को ट्रेन कर सकते हैं. ठीक है. तो इसकी जो है ये बहुत सारे फ़ायदे हैं. बट इसका एक काफ़ी बड़ा नुकसान ये है कि इट टेक्स अप टू 1 year after the injection for ovulation to return. ठीक है. इसका फायदा ये है कि इट कैन बी गिवन बाय ऑलमोस्ट एनीवन, और ये 3 months तक रहती है तो इट्स फीजिबल एज वेल. लेकिन it takes up to 1 year after the last injection for ovulation to return. तो कोई अगर फॉरन जो है कंसीव करना चाह रहा है तो it's not ideal for them. इसमें जो है IM का मैंने मेंशन कर दिया है और subcutaneous दोनों, they may cause weight gain but in very few women, and they may cause loss of bone mineral density, but you have to advise them as well. ठीक है. तो that the loss seems to plateau and it has not been associated with osteoporotic fractures. And जो भी उसका bone mineral density कम हो रही थी, it's reversible on stopping. उसके अलावा इन्होंने यहाँ HIV स्पेशली लिखा है because of a research, but जो सारे हमारे पास methods हैं of contraception जिसमें we don't prevent the fluids touching the mucosa, उस सब में STDs का रिस्क वही रहता है जो दूसरे लोगों में है. ठीक है. तो उसके लिए you should be encouraged to use condom in areas जहाँ पे STDs ज़्यादा हैं. ठीक है. तो not only this injectable but every other system जिसके अंदर हम fluids को mucosa से touch होने में prevent नहीं कर रहे, they will most probably मतलब there will be no change in the STD rate. ठीक है, percentage. तो इन्होंने यहाँ पे specially सिर्फ वो research की वजह से mention किया हुआ है, but I want you to remember this for all things. Then we have this one, levonorgestrel intrauterine system, जिसका यहाँ ट्रेड नेम मारीना भी लिखा हुआ है. ये 5 years इसकी जो है 2 डोजेस में आती हैं, एक 52 मिलीग्राम वाली और एक 13.5 मिलीग्राम वाली है. जो 52 वाली है वो 5 years के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अगर वुमेन 55 years या ओल्डर है तो ये मेनोपॉज तक यूज हो सकती है. देन जो दूसरी 13.5 मिलीग्राम वाली है जिसको हम जेडस भी कहते हैं या स्काइला कहते हैं, ये 3 सालों के लिए यूज हो सकती है. ठीक है.
और ये जो 13.5 मिलीग्राम वाली है, इसका बस यही है कि स्लाइटली नैरोअर है, इसका शॉर्टर फ्रेम होता है, तो इसके अंदर जो यंग या नली पैरस वुमेन है उनके लिए इंसर्शन ये इजीली हो जाती है। एंड इसके ऊपर एक सिल्वर बैंड बना होता है एट द प्रॉक्सिमल एंड, तो जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इसको आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ठीक है, कि ये 13.5 मिलीग्राम वाली है या 52 मिलीग्राम वाली है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे वर्क करती है, ये एंडोमेट्रियल जो है वो इम्प्लांटेशन को रोक देती है, ठीक है, and it has a thickening effect on the cervical mucus as well, so this impedes the entry of the sperm। और इसमें लिखा हुआ है this one Mirena especially does not prevent ovulation, ठीक है। फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ यूज में ये बहुत कॉमन है, अ लॉट ऑफ वुमेन दे एक्सपीरियंस अनप्रेडिक्टेबल ब्लीडिंग, तो ये उनको पहले से आपने एडवाइस करना है दैट यू विल गेट दिस। लेकिन जो है आपने अगर ब्लीडिंग ऑब्वियसली ज़्यादा हो रही है या लाइट हेडेडनेस हो रही है उसकी वजह से, तो शी शुड कम इन, ठीक है। फिर उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स में देर इज़ एक्नी अगेन बिकॉज ऑफ द एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, मूड डिस्टर्बेंस हो सकता है, हेडेक्स, ठीक है। इन ऑल दीज केसेस शी शुड कम बैक टू द गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, अब इसके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, हमने उस टेबल में भी देखे थे। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर बहुत हेल्प करता है। एंड देन रिमेंबर आई टोल्ड यू निमोनिक फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो पाम कॉइन वाला था, उसमें पाम जो था उसमें क्या था, पॉलिप्स थे, एडेनोमायोसिस थे, लियोमायोमा था और मेलिग्नेंसी थी। तो जस्ट रिमेंबर के हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ साथ पॉलिप्स को भी ये उसका कर रहा है काम। इसके बेनिफिट्स में पॉलिप्स की उसकी ब्लीडिंग भी कम आ रही है, फिर एडेनोमायोसिस की ब्लीडिंग भी कम आ रही है, तो यू कैन जस्ट एक्सपैंड ऑन इट लाइक दैट, ठीक है। ये ज़्यादा इफेक्टिव भी है एट रिड्यूसिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ टॉप ऑफ द लाइन, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता दी इसको। And it is also effective in treating dysmenorrhea, and this is what makes it so attractive. Heavy menstrual bleeding और dysmenorrhea जिन females में है and they also require contraception, तो उनके लिए ये मतलब recommended है, ठीक है। फिर endometriosis, adenomyosis, and it protects the endometrium against hyperplasia, we already talked about this। तो इस ये जो पर्पल बॉक्स है इसको आप टिक कर लें, ताकि आपने जब रिवाइज करना हो तो सिर्फ आप इसकी ये देखें कि प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन, इम्पेयर्स द सर्विकल म्यूकस मतलब मेक्स इट वेरी थिक एंड इनहिबिट्स द इम्प्लांटेशन, ये 3 चीजें, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव इंट्रायूट्राइन कंसेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन एक्सक्यूज मी, और इसमें हम ये LNG IUS डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम कॉपर IUDs की बात करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ यूज 3, 5 या 10 ईयर्स का होता है, ठीक है। और अगर ये 40 ईयर्स एंड अबव में इंसर्ट हो तो ये मेनोपॉज तक रख सकते हैं। जो पिछला वाला था वो 45 ईयर्स एंड अबव मेनोपॉज तक रख सकते थे, और ये वाला हम 40 ईयर्स एंड अबव मेनोपॉज तक रख सकते हैं। इसके डिफरेंट साइज, शेप्स, कॉपर कंटेंट, ड्यूरेशन ऑफ यूज वगैरह वगैरह आता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि they both of these devices they do not cause a delay in return to fertility and they do not increase the risk of infertility, और women को ये बताना चाहिए, ठीक है। तो अब तक हमने सिर्फ एक पढ़ा है जो हमारे पास, वो प्रोजेस्टिन ओनली इंजेक्टेबल था, जो डिपो थी मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन डिपो इंजेक्शन था, वो हमें 1 साल तक ओव्यूलेशन प्रिवेंट कर रहा था आफ्टर इट्स डिसकंटिन्यू, आफ्टर यू डिसकंटिन्यू इट। ये वाले जो हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं वो यू कम बैक टू नॉर्मल एंड यू रिटर्न टू द नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, कॉपर वैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस को वैसे भी, बट स्पेशली द कॉपर वन एज वेल, कि ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करते हैं यूट्रस में। तो इफ यू गाइस वॉच दैट रियली ड्रामेटिक वीडियो ऑफ हाउ द WPCs attacks the sperm in the female tract, तो you would understand कि अब ये इफेक्ट जो है वो इनहेंस हो गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो सारे जो के स्पर्म हैं they are prevented from reaching the मतलब reaching even the tubal area, ठीक है। All right. अच्छा, bleeding क्या है, I've already said this कि sometimes ये जो माइरीना है इसके साथ लाइटर और लेस पेनफुल मेंसेस होते हैं, लेकिन जो कॉपर वाला है उसके साथ मोर पेनफुल एंड हैवियर मेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आप याद रख लें, पिछले वाले में लाइटर लेस पेनफुल थे और इसमें मोर पेनफुल एंड हैवियर है,
ठीक है, तो उनको आप क्या NSAIDs दे के हेल्प कर सकते हैं टू लेसन द पेन एंड ब्लड लॉस. यू कैन ऑल्सो यूज ट्रानएग्जामिक एसिड, ठीक है, या फिर आप वुमेन को स्विच करवा सकते हैं टू माइरीना. ऑल राइट. फिर ओवरऑल रिस्क ऑफ जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो इट इज़ मच रिड्यूस्ड, लेकिन रिलेटिव रिस्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, टॉपिक का, बिकॉज ऑब्वियसली अगर IUD है तो इम्प्लांटेशन तो वो होने नहीं दे रहा, तो अगर गलती से इफ़ शी डज कंसीव तो फिर उसकी जगह दूसरी ही कोई बचती है, तो रिलेटिव रिस्क इसलिए इंक्रीज हो जाता है. अगर शी डज कंसीव तो यू शुड रिमूव द IUD बिफोर द 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, वरना वो मिसकैरेज करा देगा अगर, या फिर प्री टर्म डिलीवरी या कोई सेप्टिक अबॉर्शन या कोरियोमनियोनाइटिस करा देगा अगर उसको वहाँ रखा जाता है, ठीक है, if she does conceive. तो I already told you this in the last one, but I'll just repeat it. तो this is the uterus, ठीक है, बर्थ कनाल, हमने यहाँ ये T वाली डिवाइस रखी हुई थी, और यहाँ पे जो है इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है. तो नाउ द वुमन कम्स, उसको फॉर एग्जांपल इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, फॉर एनी रीज़न वो आती है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे जेस्टेशनल सैक मिल जाता है, फीटल हार्ट बीट या कुछ मिल जाती है, तो ये इसका एक थ्रेड होता है, आपने सिंपली ये थ्रेड पुल करके ना इसको निकाल लेना है, ठीक है. दैट्स ऑल यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू प्रेफरेबली रिमूव इट बिफोर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, ताकि इसका मिसकैरेज ना हो जाए, सेप्टिक अबॉर्शन ना हो जाए, कोरियोमनियोनाइटिस ना हो जाए, ठीक है. तो दिस इज व्हाट इट्स अबाउट. अच्छा, अब इंसर्शन ऑफ IUD, इट्स रियली सिंपल, यू कैन फिट इट एट एनी पॉइंट, ठीक है, बस कुछ रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं. एक तो परफोरेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो एक्सपीरियंस्ड आपके पास क्लिनिशियन होना चाहिए, ठीक है, और या फिर जब ब्रेस्ट फीड कर रही है या लेस देन 6 मंथ्स पोस्टपार्टम में स्पेशली आपने बहुत ख्याल रखना है. अब मिसिंग थ्रेड्स की जो है हिस्ट्री के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगी, ठीक है. परफेक्शन में क्या होगा, वो कहेगी थ्रेड मिसिंग हो गया है, उसके बाद उसको सिवियर पेन भी हो रही है, तो उसमें आप जो है पहले अल्ट्रासाउंड लगा के चेक करेंगे वेयर इज द थ्रेड. अक्सर वैसे भी उस पर क्या कहते हैं, स्कोप डाल के, क्या कहते हैं, स्पेकुलम, एक्सक्यूज मी, स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे आपको पता चल जाता है थ्रेड किधर है. अगर नहीं पता चल रहा, अल्ट्रासाउंड करें, अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाएगा. अगर फिर भी नहीं मिल रहा, अगर वो डिवाइस ही नहीं मिल रही आपको यूट्रस में, तो आप एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे और आपको IUD मिल जाएगी, ठीक है. तो उसके लिए हम लैप्रोस्कोपिक रिट्रीवल करते हैं, एक्सट्रीम केसेस में आपको लैप्रोटमी करनी पड़ेगी. उसके अलावा एक्सपल्शन ऑफ द डिवाइस इज एक्चुअली प्रीटी कॉमन, और ये फर्स्ट 3 मंथ्स में वो इजीली हो जाता है, अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता. तो फॉर दिस यू नीड टू एक्सप्लेन टू द फीमेल हाउ टू परफॉर्म रेगुलर सेल्फ चेक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ द थ्रेड इन द अपर वेजाइना, ठीक है. फिर इन्फेक्शन का चांस जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन द फर्स्ट 3 वीक्स, और उसके बाद इट बिकम्स just the same as if the woman was not using contraception, ठीक है. तो फर्स्ट 3 वीक्स में बेसिकली इन्फेक्शन का चांस है, इन्होंने लिखा हुआ इन्फेक्शन का लास्ट चांस इज लो बट इट इज देयर, ठीक है. फिर इसमें क्या होता है, अगर क्या कहते हैं, अगर इन्फेक्शन हुई है तो आप उसको अंदर छोड़ दें और साथ में आप उसको एंटीबायोटिक्स दे दें, ठीक है. अगर जो है ऑब्वियसली अगर इन्फेक्शन हो गया एंड द फीमेल सेज दैट यू शुड रिमूव इट, तो फिर उसको रिमूव कर दें और साथ में उसको ओरल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दे दें, ठीक है, इफ शी हैज हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. फिर देयर इज दिस थिंग व्हिच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, एक्टिनोमाइसिस लाइक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्विकल स्मीयर्स पे मिल जाते हैं, ठीक है. तो यूजुअली द डॉक्टर्स डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, लेकिन डोंट बी वरीड अबाउट दिस. अगर फीमेल एसिम्प्टोमेटिक है तो आप IUD को अंदर रखें एंड just that's all you have to do. अगर फीमेल जो है she presents with symptoms of infection, फिर आप उसको रिमूव कर दें डिवाइस को और पेनिसिलिन्स दे दें, ठीक है. तो अगर आपको सर्विकल स्मीयर पे ये एक्टिनोमाइसिस लाइक ऑर्गेनिज्म मिल रहे थे, आपने क्या करना था, एसिम्प्टोमेटिक में nothing, you just don't do anything, just leave it in there, और अगर symptoms हैं तो remove it and penicillins दें, ठीक है. उसके अलावा अगर कोई पेल्विक इन्फेक्शन की कोई सिम्टम्स हैं तो ऑब्वियसली STDs के लिए आपने जो है उनको टेस्ट करना है. एंड
आप क्या कर सकते हैं, जिनको पेल्विक इन्फेक्शन है ना उनके अंदर हम प्रेफरेबली जो है वो नहीं डालते जब तक वो ट्रीट ना हो जाए इनका इन्फेक्शन। तो आप उसके लिए प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स कर सकते हैं, या फिर आप स्वॉब लेके टेस्टिंग करा सकते हैं, फिर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करें, फिर आप डालें। ठीक है। जैसे कि अगर आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में ना हम कॉपर आईयूडी इंसर्ट कर देते हैं, तो अगर आपको ये डालना है ही तो फिर आप पहले उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दे दें और ये इंसर्ट कर दें। ठीक है। उसके अलावा मिसिंग थ्रेड्स का क्या मतलब है, या प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक है। प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली वो सब कुछ, वो यूट्रस जो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, तो फिर थ्रेड जो है वो ऊपर चला जाएगा। एक्सपल्शन हो गई है या परफोरेशन हो गई है। तो इन 3 केसेस में मिसिंग थ्रेड है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। ठीक है। साथ में यू कैन गिव इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन। ठीक है, अंटिल द आईयूडी कैन बी कंफर्म कि वो किधर है। फिर विजुअलाइजेशन थ्रेड की कैसे करनी थी, आपने पहले स्पेक्यूलम एग्जाम करना था, उसके फिर भी नहीं मिला तो अल्ट्रासाउंड करना ताकि आईयूडी मिल जाए कि यूट्रस में है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं मिला तो आपने एक्सरे करवाना है, एब्डोमिनल एक्सरे, तो उस पर मिल जाना चाहिए। ठीक है। मिसिंग थ्रेड्स का क्या मतलब है, प्रेगनेंसी, एक्सपल्शन और परफोरेशन। ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। कितना रहता है ये, अच्छा, अभी रहता ही है। तो लेट्स जस्ट टेक अ 2 मिनट ब्रेक और अ 5 मिनट, फिर लेट्स कम बैक। यप। ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें वी हैव कॉन्डम्स, डायफ्राम एंड कैप एंड spermicides. Male condoms are cheap and they're widely available. Apart from that, they also protect from STDs, especially HIV. ठीक है, these are the only reversible male method. और इसके टिपिकल फेलियर रेट्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, लेकिन अगर ये करेक्टली जो हैं पुट ऑन करना सीख लें, दे यूज़ इट करेक्टली बिफोर पेनिट्रेशन एंड बिफोर एवरी एक्ट ऑफ इंटरकोर्स, तो इसका काफ़ी अच्छा रेट है ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है। और जो फीमेल कॉन्डम है वो एक लुब्रिकेटेड पॉली यूरेथीन कॉन्डम है, ये वजाइना में इंसर्ट होता है, एंड दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम sexually transmitted infections. ठीक है। तो these are the pictures. This is the male one. This is the female one. ठीक है। Then we have the diaphragm and the cap. These are latex या non-latex devices. ये हम vagina में insert करते हैं to prevent the passage of sperm to the cervix. So it's basically like यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर है, ये कैप की है। द कैप इट फिट्स ओवर द सर्विक्स। ठीक है। तो इस तरह फिट होता है। एंड देन आई थिंक आई गूगल्ड अप अ पिक्चर ऑफ डायफ्राम एज वेल। तो ये इस तरह है, इट फॉर्म्स ए हैमक बेसिकली फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स टू द प्यूबिक सिम्फिसिस। तो ये इस तरह जो है ये प्रिवेंट करता है। अच्छा, नोट के जो ये कैप की डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स द यूट्रस है, और अगर हम इसके अंदर स्पर्मिसाइड जेली लगाते हैं तो वो इसके अंदर यहाँ पे होती है टुवर्ड्स द यूट्रस वाली साइड। ठीक है। बिकॉज वी वांट के एक तो कोई स्पर्म पेनिट्रेट करके पहुंचे ना, लेकिन गलती से अगर पहुंच जाए तो वो स्पर्मिसाइड जेली जो है वो बचा कुचा काम जो है वो तमाम कर दे। ठीक है। तो इट साउंड्स वेरी स्केरी बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज, बिकॉज बुक में खुद ही लिखा होता है इट्स लाइक अ पॉइजन लिटरली। और उसके लिए स्पर्मिसाइड में क्या यूज होता है, नॉन ऑक्सिनिल 9, N9 कहते हैं, नॉन ऑक्सिनिल 9। ठीक है। ये बुक में लिखा हुआ है पेज 81 पे ओवर हियर। ठीक है। अब इसके जो हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि इसको इंसर्ट और रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है, और इसकी वजह से इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज एंड यूटीआईज हो जाते हैं। ठीक है। और स्पर्मिसाइड्स अगेन ये जेल, क्रीम, फोम की फॉर्म में भी आते हैं, स्पंज या पेसरी भी आती है for use with diaphragms or caps. And just remember this compound non-oxynil 9, and yeah. मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली थी, इट्स कॉल्ड टुडेज स्पंज, और इसके ऊपर ये नॉन ऑक्सिनल 9 लगा होता है, और यू इंसर्टेड लाइक दिस राइट ओवर द सर्विक्स। ठीक है। अच्छा, अब स्पर्मिसाइड्स दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज अलोन। ठीक है। तो उनका यूज जो है वो कैप और डायफ्राम के साथ होता है। द नेक्स्ट वन वी हैव इज फीमेल स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। तो इसके अंदर
there are 3 ways you can do it. You can do it laparoscopically, you can do a hysteroscopy, और you can do it by a laparotomy. और ये तब होता है जैसे सी सेक्शन हुआ है और फीमेल ने ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट किया हुआ था कि आप जो हैं, दे यूजली नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं ट्यूब्स टाई कर दें, बट एक्चुअल में वो किसी चीज़ को मतलब ऐसे नॉट नहीं लगा रहे टेक्निकली, दे बेसिकली यूजिंग दिस फिल्शी क्लिप. तो अगर हम लोग लैप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं तो हम बाहर से ये क्लिप लगा देंगे, ठीक है. अगर हम हिस्टेरोस्कोपिकली करेंगे तो हम जो है ये इसको क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली अ स्पाइरल, अ मेटल स्पाइरल. तो हम थ्रू द सर्विक्स जाते हैं अंदर और इसको इंसर्ट कर देते हैं, और ये स्पाइरल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस कर देगा और इस ट्यूब को जो है वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है. अब इन दोनों मेथड्स में यू हैव टू यूज इफेक्टिव कॉन्ट्रसेप्शन अंटिल द नेक्स्ट मेंसेस आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है. Due to the risk of pregnancy from implantation of an earlier fertilized egg in the same cycle. तो after you do female sterilization तो आपने मतलब नेक्स्ट मेंसेस या टिपिकली 1 मंथ तक आपने उनसे जो है कहना है कि यू हैव टू यूज अदर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, ठीक है. तो हाई रिस्क किन फीमेल्स में होता है जो ओबीस होती हैं, कोई किसी की प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई हुई है तो ऑब्वियसली दे विल हैव एडिशंस एंड ऑल ऑफ दैट रिस्क. एंड उस केस में अगर वो ओबीस हैं या कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम हिस्टेरोस्कोपिकली इंसर्ट करें, ठीक है, अगर लैप्रोस्कोपिकली नहीं कर सकते. एडवाइस टू वुमेन जो है इधर ये अच्छा ये पर्पल टेबल है, ठीक है. दिस मेथड इज इरिवर्सिबल, तो दिस नीड्स टू बी कन्वेड वेरी प्रॉपरली. फेलियर रेट जो है 1/200 है फॉर लैप्रोस्कोपिक एंड 1/500 है फॉर हिस्टेरोस्कोपिक कंपेयर टू द लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड्स. रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में क्या, रिस्क ऑफ ट्रॉमा टू द बाउल आता है, ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स, और जब ये हम मतलब हिस्टेरेक्टमी वगैरह देखेंगे तो विल सी कि ये बाउल, ब्लैडर और ब्लड वेसल्स रास्ते में कैसे आ जाती हैं और कैसे रिस्क और कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो जाता है. वेसेक्टमी इज एक्चुअली सेफर, क्विकर एंड कैरीज विद इट लेस मॉर्बिडिटी. वेसेक्टमी इज बेसिकली द मेल स्टेरिलाइजेशन, ठीक है. फिर हाई प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन दे रिग्रेट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है. रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, दे गॉट देयर स्टेरिलाइजेशन बिफोर 30 years, दे वर नली पैरस, उनकी कोई रिसेंट प्रेगनेंसी वगैरह हुई थी जिसकी वजह से उनको ट्रॉमा हुआ तो दे डिसाइडेड टू गेट अ स्टेरिलाइजेशन बट देन लेटर दे रिग्रेटेड इट, एंड उस वक्त कोई उनका रिलेशनशिप में इशू चल रहा था जिसकी वजह से उन्हें करवा लिया बट इट वाज प्रीटी इंपल्सिव, तो रिग्रेट आ जाता है, ठीक है. It still does not protect against infections, sexually transmitted infections, or you have to give effective contraception until the menstrual period following laparoscopic. So it's 1 month after laparoscopic and 3 months after hysteroscopic. So I just want you to remember this. Effective contraception must be given 1 month after laparoscopic and for 3 months after hysteroscopic. And pregnancy after it is rare, लेकिन अगर होती है तो ectopic most probably. और reversal of sterilization जो है is highly skilled और काफ़ी मुश्किल है, tubal reanastomosis, और सिर्फ अगर लैप्रोस्कोपिकली हुआ हो तो फिर ये रिवर्स हो सकता है. हिस्टेरोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन वो जो हम उसमें मेटल की वो डाल रहे थे रिंग टाइप, इसको हम माइक्रो इंसर्ट कहते हैं, एश्योर, ठीक है. एक्सपैंडेड स्प्रिंग्स होते हैं बेसिकली, ये टाइटेनियम, स्टील या निकल कंटेनिंग डैक्रोन के बने होते हैं. तो ये जो हैं ये नहीं रिमूव हो सकते और जो फाइब्रोसिस हुआ हो तो वो रिवर्स नहीं हो सकता. लेकिन अगर लैप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन की हुई है, मतलब वो फिल्शी जो क्लिप है वो लगाया हुआ है, तो फिर वो रीएनास्टोमोसिस हो सकती है, लेकिन अभी भी देयर विल बी एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक, ठीक है. तो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, ठीक है. अब कॉन्ट्रसेप्शन हिस्टेरोस्कोपिक का बताया कि इट शुड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months and it can only be discontinued once the correct placement of the inserts are confirmed by X-ray imaging या ultrasound, ठीक है. Then we have vasectomy which is the male sterilization. इसमें हम vast difference को जो है वो include कर देते हैं. ये पेज 83 के ऊपर जो है, इनफैक्ट मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ, ये इसकी पिक्चर बनी हुई है इधर, ठीक है. तो
ये हम कैसे करते हैं, वी डू इट फ्रॉम द, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ नो स्कैल्पल वेसेक्टमी, नो स्कैल्पल। तो इसमें हम पंक्चर वूंड करते हैं स्किन ऑफ स्क्रोटम में अंडर लोकल एनेस्थीसिया, and then we divide and occlude the vas deferens using cautery. ठीक है, there is a risk of, a very small risk of scrotal hematoma and infection with the procedure, and post vasectomy हमने semen analysis करना होता है। ये at 12 weeks हम करते हैं, 12 weeks is approximately 3 months, और हमें पता है, हमने पहले भी कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा है कि जिसकी वेसेक्टमी हो गई हो, हमने उसको 3 months तक कहना है कि प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव कोई मेथड वो यूज करता रहे। ठीक है, तो हम एट 12 वीक्स 3 मंथ्स के ऊपर हम सीमेन एनालिसिस करते हैं टू कंफर्म द एब्सेंस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ इन द एजैकुलेट। फिर until that time obviously alternate contraception has to be used, और इसका failure rate is less than female sterilization। ठीक है, और इसके अलावा मेल जो है उनका कोई और मेथड नहीं है। ठीक है, either they can use condoms or they can get a vasectomy. These are the only two methods for a male that are commonly currently used। ठीक है, then we have fertility awareness based methods। इसको हम natural family planning भी कहा करते थे, और ये बहुत ज़्यादा इसका फेलियर रेट बहुत हाई है, लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली हमारे सेटिंग में हु डोंट थिंक दैट कॉन्ट्रासेप्शन इज मोरली राइट और दे हैव रिलीजियस रीजंस फॉर बिलीविंग सो, तो उनको हम ये मेथड रेकमेंड कर सकते हैं। एक है कैलेंडर या रिदम मेथड, इसको हम ओजाइनोज मेथड भी कहते हैं, OGINO। फॉर सम रीजन ये इस बुक में नहीं लिखा लेकिन एक्सेल में था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 6 साइकिल्स के ऊपर अपना साइकिल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यू कैन इजीली डू दिस यूजिंग एप्स नाउ, या आप छोटी सी डायरी रख सकते हैं। 6 साइकिल्स आप अपने रिकॉर्ड करें। ठीक है, कब मुझे पीरियड्स हुए और कब बेसिकली हुआ। बेसिकली इट्स जस्ट यू जस्ट हैव टू मार्क योर पीरियड्स, पहले शुरू कब हुआ और एंड कब हुआ, फिर अगले महीने किस डेट को शुरू हुआ किस डेट को एंड हुआ। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट फर्टाइल डे is basically the shortest cycle minus 20. Okay, let's just do a small mathematical thing ताकि हम इसको समझ सकें। तो for example normal cycle की length होती है 28 days और range होती है 21 से लेके 35 days। सपोज एक फीमेल ने अपनी साइकिल्स 6 के 6 बना लिए हैं और उसने नोट किया कि उसके सबसे शॉर्ट साइकिल उसका था 25 डेज का। ठीक है, और उसका सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल था 28 डेज का। ठीक है, तो उसने देख लिया कि शॉर्टेस्ट साइकिल कितना था 25 डेज का, तो हमने कर लिया 25 माइनस 20, बचा हमारे पास 5। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ना, इजियर फॉर अस। ठीक है, शॉर्टेस्ट साइकिल क्या था 25, लॉन्गेस्ट साइकिल क्या था 28 डेज का। इसमें से हमने 20 माइनस किए, क्या बचा 5। इसमें से हमने 10 माइनस किए, क्या बचा 18। तो वो कहेगी कि ये 5 से 18 दिन जो मेरे साइकिल के हैं ये मेरे हैं फर्टाइल डेज। कितने दिन बने 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 8 17 18, तो ये है कोई एक सेकंड में बिना गिन लिया। 18 माइनस 5 कोई कर सकता है नॉर्मल इंसानों की तरह, मैंने उंगलियों पे गिना है। 13 बनता है ना, हाँ एमी उंगलियों पे गिन रही थी पता नहीं क्यों। अच्छा 13 है ये। ठीक है, 13 वो कहेगी कि ये मेरे दिन है साइकिल के जिसमें मैं फर्टाइल हूँ। हाँ थैंक यू। अच्छा, फिर अब इन पे मैंने क्या करना है, वी हैव टू एब्सटेन। ठीक है, अब यू कैन सी व्हाई द फेलियर रेट इज सो हाई। ये 13 डेज आप एब्सटेन कर रहे हो, फिर 7 डेज हमारे वो आ जाते हैं पीरियड्स के, तो बचा ही क्या फिर पीछे, कितने 10 दिन बच गए। तो यू कैन सी व्हाई इट्स नॉट दैट इफेक्टिव। ठीक है, फिर हमारे पास है टेम्परेचर मेथड। बस इसका नाम याद रख लें। ठीक है, आपने अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर चेक करना है, और जब ओव्यूलेशन होने वाली होती है तो तब आप मतलब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे दैट यू कैन डू इट। फिर एक सर्विकल म्यूकस मेथड है, एंड लिटरली मैं इसके बारे में पहली दफ़ा पढ़ रही थी
It seems like the worst method, but khair, that's my opinion. आपने क्या देखने हैं on toilet tissue, you have to check for the consistency of the mucus. ठीक है, तो जो mid cycle हमारे पास mucus आता है, it's clear, watery and slippery. और जो प्रोजेस्ट्रोन के टाइम पे आता है, बाद में आता है, वो रॉ एग वाइट कंसिस्टेंसी क्या होता है, थिक एंड ओपेक. ठीक है, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि जब वाटरी है तो वो फर्टाइल डेज है, और जब वो थिक है तो नॉन फर्टाइल डेज हैं. बट देयर इज अ बिग इशू देयर एज वेल, एज यू कैन क्लियरली सी. ठीक है, फिर you can palpate your cervix and see, ठीक है, cervix rises 1 to 2 centimeters at mid-cycle and feels softer and moist. But obviously you kind of have to do this every day to understand, okay, is it softer and moist or is it not? Here we have a personal fertility monitor. इसमें डिस्पोजेबल, इट लिटरली इट लुक्स लाइक वो जो ब्लड शुगर मेजर करने वाली नहीं है, मैंने गूगल किया था, ये देखें. इसके अंदर जो है ना आपकी वो स्टिक लगती है, तो इसके ऊपर आप रोज सुबह सुबह उठ के आप यूरिनेट करें और आपको वो एस्ट्रोजन के आपके लेवल्स बताता है, इसमें आपकी बॉडी में कितना है, यूरिन में कितना है. ठीक है, एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन. तो ऑब्वियसली मतलब वो मशीन बेसिकली डज द वर्क फॉर यू. जब रेड लाइट आएगी मशीन पे, इट मीन्स आपका फर्टाइल पीरियड चल रहा है. ओ यू कांट सी, ओ गॉड, एक मिनट, मैं कब से उनको गूगल पे पिक्चर्स दिखा रही हूँ और शायद नजर नहीं आ रहा. लेट मी fix that. Can you guys see now? Oh god, okay. Okay, ये डिवाइस है. ये हमारे पास ये हैंड हेल्ड जो है पर्सनल फर्टिलिटी मॉनिटर है, हैंड हेल्ड मॉनिटर डिवाइस है. तो इसमें जो है यहाँ पे एक स्टिक लगती है. ठीक है, बिल्कुल जैसे ब्लड शुगर का अपरेटस है. तो उसके ऊपर आपने यूनिट करके वो स्टिक मशीन में डालनी होती है और वो आपको बता देती है, ठीक है, आपके एस्ट्रोजन लेवल यूरिन के हिसाब से. तो रेड लाइट जब आएगी इस डिवाइस के ऊपर, तो इसका मतलब आपका फर्टाइल फेज चल रहा है, और जब ग्रीन लाइट आएगी तो इनफर्टाइल फेज चल रहा है. ठीक है, और आपको ये अर्ली मॉर्निंग जो है रोज यूज करना है. नेक्स्ट वी हैव द मेथड ऑफ लैक्टेशनल एमेनोरिया. ये बुक किधर गई, इधर है. ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया विद इन द फर्स्ट 6 months पोस्टपार्टम. अगर फीमेल को एमेनोरिया है एंड शी इज ब्रेस्ट फीडिंग, तो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी 2% होता है. एंड after 6 months obviously you have to use another method of contraception. But अक्सर क्या होता है कि this is not very common as well. मतलब कुछ लोगों को हो जाता है lactation amenorrhea, कुछ लोग even after 1 month postpartum जो हैं they return back to their normal fertility. तो this is only in the case कि वो 6 महीने उसको periods नहीं आ रहे और वो breastfeeding भी continue रख रही है. ठीक है. And then we have emergency contraception. Now this is the thing that I've been talking about this whole time. Copper IUDs के लिए most effective method है, ये आप याद रखें. ठीक है, तो if there has been some ये it should be offered as first choice to women. ठीक है, or if there has been an incident of some sort, so you can instantly insert it, and you should insert it up to 5 days after unprotected intercourse. ठीक है, or 5 days after the predicted ovulation. तो which means जैसे अगर 14th डे को नॉर्मल साइकिल में ओव्यूलेशन हो रही है, तो आप +5 करके आप 19th डे ऑफ द साइकिल तक ये डाल सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा ये है हमारे पास कॉपर आईयूडी. ठीक है, कॉपर आईयूडी क्या थी, मोस्ट इफेक्टिव मेथड था. ये फर्स्ट चॉइस की तरह ऑफर होना चाहिए. ठीक है, और ये 5 डेज तक आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स डाल सकते हैं, या 5 डेज आफ्टर प्रेडिक्टेड ओव्यूलेशन, मतलब हम 19th डे ऑफ द साइकिल तक इसको डाल सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा वी हैव 2 oral methods of emergency contraception. इसमें एक हमारे पास लीवोनॉर्जेस्ट्रल है और एक है यूलिप्रिस्टल एसिटेट. अच्छा, इसके फॉर एग्जांपल for in fact, you know what, let's just go to the
ये अच्छा ये बना हुआ है, इसमें सब अच्छे से समराइज किया हुआ है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के टेबल, इसको बड़ा सारा टिक कर लें। मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है हमारे पास? कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ठीक है, अप टू 5 days लिखा हुआ है। फिर हमारे पास यूलिप्रिस्टाल है, यूलिप्रिस्टाल एंड लीवोनॉर्जेस्ट्रल, ये दोनों हमारे पास अवेलेबल है ओरल मेथड्स। यूलिप्रिस्टाल जो है इट कैन बी गिवन विद इन 120 hours एंड लीवोनॉर्जेस्ट्रल विद इन 96 hours। ये आपको आवर्स पता होने चाहिए, ठीक है, विद इन 120 hours एंड विद इन 96 hours। और लीवोनॉर्जेस्ट्रल उसके अलावा इफेक्टिव ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्शन बी स्टार्टेड आफ्टर इमरजेंसी। या मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑलरेडी अगर कोई जो भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करिए, जैसे कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेने के बाद शी शुड स्टार्ट लाइक अ न्यू साइकिल और कंटिन्यू विद हर प्रीवियस साइकिल, बट देन स्किप द 7 day फ्री पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं ट्रेड नेम्स इसके बताना चाहती हूँ बिकॉज समटाइम्स दे माइट आस्क। तो लीवोनॉर्जेस्ट्रल में इसको हम प्लान बी पिल भी कहते हैं। इसका लिवोनेल जो है वो ट्रेड नेम है। इसको हम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं, दोनों को ही कहते हैं, बट अमूमन लीवोनॉर्जेस्ट्रल को मॉर्निंग आफ्टर पिल कहते हैं। देन दिस इज ELA-1। तो मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा देती हूँ, हेल्प यू जस्ट रिमेंबर द नेम्स एज वेल। और ये टैबलेट जो, एक सेकेंड, हाँ, दिस इज द ELA-1 एंड एज यू कैन सी ये वो पूरे डब्बे में एक ही उन्होंने डाली होती है, ठीक है, यूलिप्रिस्टाल एसिटेट। एंड देन वी हैव आवर प्लान बी पिल लिवोनेल, जो फॉर सम रीजन ये पेज ही गायब हुआ है। I'll just search Livonel up here. Livonel, नेट ही स्लो है। इसके अंदर भी पूरे डब्बे में वो एक ही टैबलेट आई होती है, ठीक है, किधर है, हाँ, इस तरह। ऑलराइट, तो दीज आर योर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। फिर हमारे पास अब एक टेबल बचा हुआ है कॉन्ट्रासेप्शन के, उससे जो हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अब गायनेकोलॉजी क्लिनिक में आप बता सकते हैं, अच्छा, अब ये गायनेकोलॉजी क्लिनिक का मैंने एक बात बताई थी, इफ यू आर बिलो 21 years of age and you are sexually active, then you should visit the gynecologist every year, ठीक है। अगर आप 21 years of age से ज़्यादा हैं and even if you're not sexually active, you should again visit the gynecologist every year, ठीक है, just to discuss other things as well, like infections or any other concerns that you have, ठीक है। फिर तो गायनेकोलॉजी क्लिनिक में कर सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देते वक्त आप उनको बता सकते हैं। फिर इफ देयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर एन इंड्यूस्ड अबॉर्शन, then in the antenatal or postpartum period. So just remember these main opportunities, and the most effective opportunity is during the antenatal period. ये already हमने OBS में देख लिया था, ठीक है। तो ऑल राइट, अब नेक्स्ट हमारे पास है अबॉर्शन एंड दिस शुड बी वेरी शॉर्ट। हमने सिर्फ वो करने थे, व्हाट इज द मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन एंड व्हाट इज द सर्जिकल मेथड। इसमें से सिर्फ हमने ये देखना है कि क्या प्रोसीजर के नेम क्या हैं। मेडिकल अबॉर्शन में हम लोग मीफीप्रिस्टोन देते हैं प्लस मीजोप्रोस्टोल। मीफीप्रिस्टोन है जो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है एंड इट इज फॉलोड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मीजोप्रोस्टोल। तो मीफीप्रिस्टोन वो क्या करता है कि इंक्रीजेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो ये जो है एंड आल्सो इट सेंसिटाइजेस द रिसेप्टर्स टू मीजोप्रोस्टोल। तो फिर जब मीजोप्रोस्टोल आता है तो वो और ज़्यादा जो है वो कंट्रैक्शन करवा लेता है और एक्सपेल्शन हो जाती है, क्या कहते हैं उसकी, फीटस की, और या फिर द व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ मीफीप्रिस्टोन जो है वो 48 आवर्स पे मैक्सिमल होता है। तो क्या करते हैं, आप पहले मीफीप्रिस्टोन देते हैं, फिर आफ्टर 24 to 48 आवर्स जो है आप मीजोप्रोस्टोल दे देते हैं। और इसको जो है फर्स्ट 9 weeks ऑफ प्रेगनेंसी में यू कैन सेफली एडमिनिस्टर दीज एट होम इवन, ठीक है। और आप
सेल्फ मेडिकेट करके आप खुद प्रेगनेंसी को एक्सपेल कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है या कुछ भी, तो आप इसके लिए सिंपल ibuprofen या डाइहाइड्रोकोडीन कोई भी ऑरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, ठीक है। और वुमेन शुड नो, ये पैकेट पे लिखा भी होता है कि एट 9 वीक्स जेस्टेशन they will bleed for an average of 2 weeks following the medical abortion. तो पिल्स क्या थी? मीफीप्रिस्टोन थी, मीजोप्रोस्टोल थी। पहले आप मीफीप्रिस्टोन दें, 24 to 48 आवर्स पे आप मीजोप्रोस्टोल दे दें। एट 9 अप टू 9 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ये सेल्फ एडमिनिस्टर भी हो सकती है, और आफ्टर दैट 2 वीक्स तक ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा पेन के लिए ऑरल एनाल्जेसिया दे सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 9 वीक्स हम क्या करते हैं? आफ्टर 9 वीक्स हमने क्या करना है? हमने मीफीप्रिस्टोन दे दी। आफ्टर 24 टू 48 आवर्स हमने मीजोप्रोस्टोल दी, और इस मीजोप्रोस्टोल को हमने एवरी 3 आवर्स दिया, तब तक जब तक एक्सपल्शन हो जाए, ठीक है। आफ्टर 9 वीक्स जो है वो डिस्कम्फर्ट भी ज़्यादा है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा है, बिकॉज देयर इज़ अ लार्जर फीटस, ठीक है। और जो एवरेज टाइम है सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का, वो 7 आवर्स है, ठीक है। तो मतलब हमने 3 घंटे पे दी, फिर हमने दोबारा दी, पहली डोज दी, फिर हमने तीसरे घंटे पे दी, फिर हमने छठे घंटे पे दी। तो उसके बाद जो है यू वुड एक्सपेक्ट के अबॉर्शन होना चाहिए। तो कितनी बनी? 3 डोजेस बन गई, ठीक है। कैसे? पहले हमने दी मीफीप्रिस्टोन दे दी, उसके बाद पहली डोज मीजोप्रोस्टोल की आफ्टर 24 टू 48 आवर्स, दूसरी डोज 3 घंटे, तीसरी डोज 6 घंटे, फिर उसके बाद 7 आवर्स एवरेज था, तो 3 डोजेस बन गई, ठीक है। अच्छा, आफ्टर 21 वीक्स अगर कंप्लीट हो गए, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि फीटिसाइडल मेडिकेशन दी जाए to abort the fetus before the expulsion of the fetus. तो इसमें इंट्राकार्डियक इंजेक्शन देते हैं पोटेशियम क्लोराइड का, या कोई इंट्राफीटल या इंट्राएमनियोटिक इंजेक्शन देते हैं डाइजॉक्सिन का। तो ये 2 ड्रग्स हैं, पोटेशियम क्लोराइड दे सकते हैं या डाइजॉक्सिन दे सकते हैं। दिस इज आफ्टर 21 वीक्स, और उनका मानना है कि न्यूरल पाथवेज जो हैं वो 24 वीक्स तक डेवलप नहीं होते फीटस का, तो पेन नहीं एक्सपीरियंस होता फीटस को। फिर हमारे पास है वैक्यूम एस्पिरेशन, और ये अप टू 14 वीक्स यूज हो सकता है। सबसे पहले ऑब्वियसली रिकमेंडेड मेडिकल है। अगर फॉर सम रीजन मेडिकल नहीं कर सकते या क्या जो भी है, तो 14 वीक्स तक आप वैक्यूम एस्पिरेशन कर सकते हैं। सर्विक्स को डायलेट करवाने के लिए अगेन वी गिव मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। तो वो सर्विक्स को सॉफ्ट भी कर देगा, डायलेट भी कर देगा। तो उसके अलावा देख सकें, इसका सिर्फ नेम करना था, वैक्यूम एस्पिरेशन करनी थी, और डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है। डायलेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं आफ्टर 14 वीक्स। तो बिफोर 14 वीक्स हम वैक्यूम कर रहे थे, एंड आफ्टर हम लोग डायलेशन इवैक्यूएशन करते हैं। अगेन मीजोप्रोस्टोल यूज होता है, और इससे क्या कहते हैं, सर्विक्स जो है सॉफ्ट हो जाती है, डायलेट हो जाती है। उसको अगर सॉफ्ट और डायलेट के बगैर करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ ट्रॉमा होगा बहुत ज़्यादा। और हाँ, सर्विक्स की डायलेशन के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। I forgot what they're called now. Give me a minute. They're called. I'll get back to you on this. ठीक है। अच्छा, हाँ, यहाँ लिखे हुए हैं ग्रेजुएटेड डायलेटर्स। ग्रेजुएटेड डायलेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट्स ऑफ यूट्रस जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ फीटल टिश्यू के साथ किया जाता है, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं टू चेक इफ देयर इज कंप्लीट इवैक्यूएशन, ठीक है। तो बस इसके ये मेडिकल और सर्जिकल मेथड के नेम्स ही शायद इसके करने थे, मैंने जो चेक की थी गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कॉन्ट्रासेप्शन अबॉर्शन का कंप्लीट, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर राइट नाउ। मैंने सब फर्टिलिटी की भी वीडियो बनानी है, लेकिन अभी मैं ब्रेक लूँगी, और पता नहीं वो ब्रेक कितनी लंबी चलेगी। तो आप लोग जो हैं वो